السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل اردو کہانی لاج پہ خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ٹائملی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ناول عبداللہ کی ایپیسوڈ نمبر 19۔ کاش اس وقت سلطان بابا وہاں ہوتے تو میں خود کو اس قدر تنہا محسوس نہ کرتا۔ اس رات میں نے 2 خط لکھے، پہلا زہرا اور دوسرا عبداللہ کے نام، اور صبح ہوتے ہی دونوں خط نیچے گاؤں کے پوسٹ ماسٹر کو مزید پیسوں اور اس درخواست اور تاکید کے ساتھ پکڑا آیا کہ اسے کسی بھی طرح شام سے پہلے کسی بڑے اسٹیشن سے فوری ڈاک یا کوریئر کے حوالے کروا دیں، کیونکہ اگلی شام تک ان خطوط کا اپنی منزل تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے مجھے تسلی دی کہ وہ اسی وقت صبح 9 بجے والی گاڑی سے یہ دونوں خط شہر بھیج دیں گے، جہاں سے انہیں ان کے متحد یا کوئی دوست کوریئر کر دے گا۔ میں نے پوسٹ آفس سے ہی زہرا کے گھر فون کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن 2 دن سے برستی بارش نے ٹیلی فون کی سبھی لائنیں تہس نہس کر رکھی تھیں۔ میں اب صرف یہ دعا ہی کر سکتا تھا کہ میرے دونوں خطوط وقت پر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس دن بھی بارش نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ عصر کے بعد کرم دین اور بشیرہ آئے۔ بڑی مالکن نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ماش کی دال کی مٹھائی اور چنے کی دال کا حلوہ ناریل کی کاشوں میں بھر کر بھیجا تھا۔ اصغر صاحب اپنی مسکراتی اور معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھتے رہے۔ میں نے نظر بجا کر کرم دین کا ہاتھ پکڑا اور اسے ذرا دور لے جا کر اس سے اس کی چھوٹی مالکن کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ کرم دین فوراً ہی اداس ہو گیا۔ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے جی، شام تک طبیعت کچھ سنبھلی تھی، پھر رات کو دوبارہ بخار چڑھ گیا۔ آپ دعا کریں جی کہ وہ جلد بلی چنگی ہو جائیں۔ ہم سب تو ان کی ہنسی اور ان کی ڈانٹ پر ہی زندہ ہیں۔ میں نے کرم دین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، فکر مت کرو، جو لڑکی اتنے بہت سے لوگوں کی زندگی کا باعث ہو اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بشیرہ اور کرم دین زیادہ دیر نہیں ٹھہرے اور چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد اصغر صاحب نے شرارتی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ کیا بات ہے میاں، بڑی آؤ بگت ہو رہی ہے؟ بڑے خوش نصیب ہو۔ میں بھی ان کی اس شرارت پر مسکرا پڑا۔ ویسے بھی انہیں جب سے اپنی آزادی کی خبر ملی تھی تب سے وہ بہت خوش رہنے لگے تھے، سارا دن کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے تھے۔ انہوں نے غور سے میری جانب دیکھا۔ کیسی ہے وہ؟ گویا انہیں خبر ہو گئی تھی کہ میں کرم دین سے کیا بات کر رہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک منت مانگی ہے میں نے بھی آپ کی طرح، دعا کریں کہ اس کے لیے مانگی گئی میری وہ منت بھی قبول ہو جائے۔ اور پھر خط بھیجنے کے تیسرے دن یعنی بدھ کی سپہر میری منت قبول ہو ہی گئی۔ اس روز آسمان صبح سے صاف ہو چکا تھا اور چمکتی دھوپ میں ہر طلوع منظر جگمگا رہا تھا۔ دھوپ کی نرم کرنوں کے درمیان درگاہ کے احاطے میں میری قسمت کا سورج تب جگمگایا جب میں تھک کر مایوس ہونے کو تھا۔ اصغر صاحب بھی درگاہ کے صحن میں انگوروں کی بیل کی جانب چگتے پرندوں کو دانہ ڈال رہے تھے۔ پہلے ان کی نظر درگاہ کے دروازے کی جانب اٹھی اور پھر میں نے ان کی حیران نظروں کی تعاقب میں دیکھا تو خود بھی سب کچھ بھول کر وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ہاں، وہ وہی تھی، اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شاہانہ جلال کے ساتھ، اسی کالے نقاب میں، اسی طرح پانیوں پر تیرتی راج ہنسنی کی طرح چل کر آتے ہوئے۔ ہاں، وہ زہرا ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے خط لکھ کر اسے بلا تو لیا تھا اور مجھے یقین بھی تھا کہ وہ میری پکار پر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے ضرور پہنچے گی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اسے اپنے سامنے پا کر اس طرح گمسم کھڑا تھا جیسے اب بھی وہ کوئی خواب ہی ہو، میرا سب سے حسین خواب۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو بلایا تھا۔ ہاں، لیکن آپ یہاں تک پہنچ بھی گئی ہیں، مجھے اس کا یقین تو ہو جانے دیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں شرارت کی لہر تیر گئی۔ آپ کہیں اور ہم نہ آئیں، ایسے تو حالات نہیں۔ پھر اچانک ہی مجھے ہوش سا آ گیا۔ لیکن آپ یہاں تک اکیلے، میرا مطلب ہے
نہیں मैं अकेली भला यहाँ तक कैसे पहुंचती? अम्मी और ड्राइवर नीचे गाड़ी में हैं। अम्मी के घुटने इतनी चढ़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं जल्दी से असगर साहब से इजाजत लेने के बाद उनकी जानिब बढ़ा। वो पहले ही हैरान खड़े थे। ये परी कौन है अब्दुल्ला मियाँ? ये है मेरी मन्नत, मेरी दुआ। इसको मांगा था मैंने खुदा से, लारैब का दर्द कम करने के लिए। जहरा की अम्मा नीचे मेरा इंतजार कर रही हैं। मैंने हवेली छोड़कर जल्द वापस आ जाऊंगा। वो यूं ही हैरत ज़दा खड़े रह गए। मैं जहरा को लिए नीचे पहुंचा तो उसकी अम्मी मेरा इंतजार कर रही थी। जाने इस लम्हे मुझे उन पर इतना प्यार क्यों आ गया कि मैं सलाम करते ही उनके गले लग गया। वो भी बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी ही तो थी, अपनी औलाद के लिए हर वक्त और हर मुश्किल में साथ देने के लिए तैयार, हर खुशी और हर गम में उसके साथ और शरीके सफर। आज भी वो मेरी एक पुकार पर जहरा के साथ यहाँ इतनी दूर आ पहुंची थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश की तो उन्होंने हल्के से मेरा सर थपथपा कर मुझे खामोश करवा दिया। उन्होंने मुझे बताया कि इस बार बाकायदा जहरा के अब्बा से इजाजत लेकर उसे यहाँ तक लाई हैं। वो खुद भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने उनकी बीमारी की वजह से उन्हें कार के इतने लंबे सफर से मना कर रखा था। अलबत्ता उन्होंने अपनी दुआओं के साथ अपने खुसूसी मुहाफिज और ड्राइवर के साथ जहरा और अम्मी को भिजवाया था। मैं जब जहरा की गाड़ी में हवेली पहुंचा तो खान साहब और बड़ी मालकन इतनी दूर से आए हुए खास मेहमानों को अपने दरमियान पाकर निहाल ही तो हो गए। वो सब गायबाना तौर पर जहरा को पहले ही से जानते थे और इसे यूं अचानक अपने दरमियान पाकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने खत लिखकर जहरा को लारैब के बारे में सभी कुछ बता दिया था और ये भी कि इस मासूम लड़की की मसीहाई के लिए मुझे उसकी शदीद जरूरत है। मेरी अपनी एक गर्ज भी इस दरखास्त में पिन्हा थी। मैं जुमेरात से पहले एक बार जहरा से मिलना चाहता था, क्योंकि जुमेरात के दिन मैंने असगर साहब को इस भयानक जुर्म से रोकने के लिए खुद इस शिकारगाह में पहुंचने का फैसला कर लिया था, जहां उन्हें अपना आखिरी जुर्म सर अंजाम देना था। मैंने इस मतवक्की मकतूल की जगह खुद लेने का इरादा किया था। मेरी कोशिश यही थी कि मैं उन्हें किसी तरह इस आखिरी गुनाह से रोक सकूं, लेकिन मैं जानता था कि बात सिर्फ असगर साहब की नहीं है। मेरा वास्ता वहां उस अनजानी मखलूक से भी बढ़ सकता था और जरूरी नहीं था कि मैं जिंदा वहां से वापस आ पाता। लेकिन ये जुआ तो मुझे खेलना ही था और इस आखिरी बाजी से पहले मैं अपनी जिंदगी के सरमाए से आखिरी बार जरूर मिलना चाहता था। मामा और पापा को मैंने इसलिए खबर नहीं की थी, मैं आखिरी लम्हों में कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। अलबत्ता जहरा को मैंने असगर साहब या छलावे की इस दास्तान के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया था। उसे बस लारैब की बीमारी का ही पता था और ये कि मैंने उसे मोहब्बत के घाव के आखिरी मरहम के तौर पर जब्बलपुर बुलवाया है। सारी औरतें जरा सी देर में आपस में यूं घुल मिल चुकी थीं जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानती हों। अंदर जनाने की जानिब से उन सब के हंसने और बोलने की आवाजें यहाँ मर्दाने में मुझ और खान साहब तक भी आ रही थीं। खान साहब को भी शायद कुछ समझ आ रहा था कि मैंने जहरा को वहां क्यों बुलवाया है। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। अब्दुल्ला मियाँ, और कितने एहसान करोगे मुझ पर? उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं बहुत खुश नसीब हूं कि लारैब जैसा हीरा मेरे पास है। तो आज मैं तुम्हें बताता हूं कि इस रूए जमीन पर तुमसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं, जिसके पास बैक वक्त इतने अनमोल रिश्ते मौजूद हैं और उनमें जहरा जैसा नगीना भी शामिल है। मैंने दरगाह वापसी पर पहले जहरा को कुछ देर के लिए अंदरूनी ड्यूटी में बुलवाया था, ताकि उसे ये बता सकूं कि शायद मैं शाम को हवेली ना आ सकूं, क्योंकि मुझे दरगाह के चंद जरूरी काम निपटाने हैं। वो कुछ ही देर में वहां आ गई। वो अभी तक शरारत के मूड में थी। क्यों रही साहिर साहब, और कहां कहां अपना सहर बिखेरा है आपने? मैं तो ये समझी थी कि आप सुल्तान बाबा का हाथ बटाते होंगे, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। मैं मुस्कुरा दिया। ये मेरा सहर नहीं
बस आपसे हुई एक मुलाकात का असर है। मैंने जल्दी जल्दी उसे सारी बात समझा दी। ज़हरा गौर से मेरी बात सुनती रही। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके मुझ पर किए हुए एतमाद का भरम रख सकूं। मैं मुस्कुरा कर जाने के लिए पलटा तो उसने मुझे पीछे से आवाज दी, साहिर। मैंने रुककर उसकी जानिब देखा। वो भीगी पलकें लिए खड़ी थी। मुझे आप पर फख्र है, आप मेरा मान हैं। मैं कुछ भी तो नहीं बोल पाया। बस अगले ही लम्हे खुद मेरी आंखें भीग चुकी थीं। मुझे पता भी नहीं चला कि कब 2 आंसू मेरी आंखों से निकले और फिसल कर मेरे गालों तक आ पहुंचे। पल भर में ही उस दिल भर ने मेरे 7 जन्मों की रियाजत, मेरी सारी मुशक्कत, सारी मेहनत का मुआवजा अपने पंखड़ी लबों से 2 लफ्ज बोलकर अदा कर दिया था। क्या इस हकीर जिंदगी को किसी देवी के चरणों की बीन चढ़ाने के लिए इससे बेहतर कोई और पल हो सकता था? क्या इस लम्हे के बाद जीने की कोई और वजह भी बाकी रह जाती थी? हम दोनों भी कितने अजीब थे। जमाने में बिछड़ने वाले एक दूसरे को रोकर विदा करते हैं, जबकि हम दोनों की आंखों में इसलिए आंसू थे कि हम एक दूसरे को रफ्ता रफ्ता पा रहे थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो मजीद एक पल भी वहां रुक नहीं पाई और जल्दी से अपनी पलकों की शबनम अपनी हथेलियों में समेटती हुई वहां से अंदर की जानिब बढ़ गई। मैं दरगाह पहुंचा तो असगर साहब को वहां मौजूद ना पाकर मेरा दिल धक से रह गया। कहीं उनका मंसूबा बदल तो नहीं गया? उन्होंने तो जुमेरात का बताया था मुझे, पर कहीं उन्होंने एक दिन पहले ही अपना जुर्म सरअंजाम देने का फैसला तो नहीं कर लिया? खुदा ने ज़हरा को यहां तक पहुंचाकर मेरी एक दुआ तो पूरी कर दी थी, लेकिन मेरी दूसरी दुआ। मैंने दूसरा खत अब्दुल्ला के नाम लिखा था कि किसी भी तरह सुल्तान बाबा को जुमेरात से पहले जब्बलपुर वाली दरगाह पहुंचने का पैगाम दे। पता नहीं इस खत का क्या बना। मैं कुछ देर वहीं दरगाह में असगर साहब का इंतजार करता रहा, लेकिन फिर बेचैन होकर दरगाह से बाहर निकल आया। मुझे असगर साहब ने पिछले पहाड़ की इस पगडंडी का बताया था, जहां बनी हुई एक टूटी फूटी मतरूका सी एक इमारत के खंडर अब भी मौजूद थे, जो शायद किसी जमाने में कोई मुसाफिर खाना या सस्ताने के लिए कोई क़याम गा रही होगी। असगर साहब ने इसी खंडर में वो खून करना था। मैं बेकरारी में उस मुसाफिर खाने के खंडर की जानिब ही चल पड़ा। हालांकि मैं जानता था कि वो खंडर यहां से तकरीबन 3 घंटे की मसाफत पर है और शाम का अंधेरा इतनी तेजी से फैल रहा था कि रात होने से पहले मेरा वहां पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन मेरे अंदर की बेकरारी मेरे कदम बढ़ाए जा रही थी। फिर अचानक 2 कॉस के फासले पर पहुंचते ही एक मोड़ पर मुझे असगर साहब का दूर घाटी में हियोला सा दिखाई दिया। वो लंबे लंबे कदम भरते हुए दरगाह की जानिब चले आ रहे थे। मैंने शुक्र अदा करके सुकून की एक लंबी सी सांस ली, लेकिन पल भर में ही मेरा वही सुकून मेरे हलक में अटक गया। असगर साहब के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था, जिसे वो आसपास के चट्टानों पर तेज करने के से अंदाज में रगड़ते चले आ रहे थे। तो क्या उन्होंने खून कर दिया था? इतने में असगर साहब की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वो कुछ ठिठक कर रुक गए। मैं भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। मेरा सांस धूकने की तरह चल रहा था। कहां चले गए थे आप? मैं तो परेशान ही हो गया था। वो हैरान से थे। बताया तो था तुम्हें कल जुमेरात है ना? मैं जरा खंडर तक गया था, कुछ इब्तिदाई इंतजामात करने थे। लेकिन तुम इस ढलती शाम में कहां चल दिए? मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। गोया मेरा शक गलत था। मैंने उन्हें टाल दिया। कहीं नहीं, बस आप दरगाह में नहीं थे तो परेशान होकर बाहर निकल आया। चलें वापस चलते हैं। मैं उन्हें साथ लिए वापस दरगाह आ गया। उन्हें अगली शाम से पहले खंडर पहुंचना था और खंडर में उस शख्स का इंतजार करना था। इस लिहाज से मुझे उनसे पहले दरगाह से निकलकर इस खंडर वाले रास्ते पर किसी ऐसी जगह मोर्चा लगाना था जहां से उस आने वाले शख्स पर भी निगाह रख सकता और उसे वहां से पलटा कर मुझे खुद खंडर भी पहुंचना था।
सारी रात इसी उधेड़बन में गुजर गई। सुबह करमदीन खान साहब का पैगाम लेकर आया कि उन्होंने दोपहर के खाने पर मुझे हवेली बुलवाया है। उसके हाथ में ज़हरा का लिखा हुआ एक रुक्का भी था, जिस पर उसकी जांफिजा तहरीर में सिर्फ 2 सतरें तहरीर थीं। दिल पे लगे वार काफी गहरे और कारी होते हैं, लेकिन मुतमिन रहिए, आपका बेचा हुआ मसीहा भी कुछ कम मशाक नहीं। वो अपना जख्म आजमाएं, हम अपना मरहम आजमाएंगे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने उसी रुक्के पर यह शेर लिख दिया। उठती रहती है एक गर्द मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, वो है मौजूद इस कदर मुझ में। मैंने रुक्का करमदीन के हवाले किया और उससे कहा कि आज मेरी जानिब से खान साहब और मेहमानों से माजरत कर ले, क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम से दरगाह से बाहर जाना है, लिहाजा देर हो जाएगी। जिंदगी रही तो फारिग होते ही खुद हवेली हाजिर हो जाऊंगा। पता नहीं सबको फर्दन फर्दन सलाम देते हुए मेरी आवाज क्यों भरा सी गई। करमदीन पलट कर चल दिया। असगर साहब अपने कमरे में जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। उस रोज कुदरत ने भी मेरे साथ खेलने का मंसूबा बना रखा था। शायद दोपहर से पहले ही घने बादलों ने आसमान को नापना शुरू कर दिया और जोहर से पहले वही मूसलाधार जड़ी शुरू हो गई जो पिछले 1 हफ्ते से जबलपुर के पहाड़ों को नहला रही थी। मैंने असगर साहब से बहाना किया कि हवेली से मेरे लिए बुलावा आया है, लिहाजा मेरा जाना जरूरी है। अलबत्ता मैं शाम होने से पहले वापस आने की कोशिश करूंगा। वो खुशदिली से मुस्कुराए। जाओ मियाँ जाओ, हवेली में एक नहीं 2 परियां जिस शहजादे का इंतजार कर रही हूं, उसका दिल भला हम बूढ़ों के साथ कहां लगेगा। जाओ मिल लाओ, आज तुम लौटोगे तब तक मैं भी आजाद हो चुका होऊंगा। बस दुआ करना कि आखिरी लम्हे मेरे कदम लड़खड़ा ना जाएं। बड़ी हिम्मत की जरूरत है। मैं कितना बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना सही, लेकिन कत्ल फिर भी मुझसे आज तक सरजद नहीं हुआ। मैंने उन्हें खुदा हाफिज कहते हुए दिल में सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आज भी मैं उन्हें कातिल नहीं बनने दूंगा। मैं जब दरगाह से बाहर निकला तो इस ख्याल से कि कहीं वो मुझे जाते देख न लें, मैंने पहले पहाड़ी से नीचे सीधे सड़क का रुख किया, जबकि खंडर तक पहुंचने के लिए मुझे ऊपर की जानिब जाना चाहिए था, क्योंकि खंडर सड़क से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में दरगाह की पिछली चोटी के पीछे वाली पगडंडी की राह इख्तियार करने से आता था। मेरा इरादा यह था कि मैं कुछ दूर सड़क पर जाकर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार करूंगा कि असगर साहब की नजर में आए बिना खंडर की डगर तक पहुंच जाऊं। लेकिन बुरा हुआ, क्योंकि तूफानी बारिश ने दिन के वक्त भी गहरी शाम सी कर रखी थी। मुझसे अंदाजे में कुछ चूक हो गई और जिस वक्त मैं गिरते पड़ते दोबारा पहाड़ की चोटी तक पहुंचा, उस वक्त असर का वक्त गुजर चुका था। मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे, सर्द हवा ने मेरा वजूद बर्फ कर दिया था और बारिश की बूंदें मेरे जिस्म में हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थीं। दूर से खंडर के आसार नजर आए तो मेरे कदम मजीद तेज हो गए। जाने को मुसाफिर कहीं बारिश से चुभते हुए मुझसे पहले ही खंडर में पनाह न ले चुका हो। ऐसे में उसे किस तरह समझा पाऊंगा कि उसे वहां खंडर में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार उसके लिए किस कदर खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। या खुदा मुझे उससे पहले खंडर पहुंचा दे। मैं जब खंडर में दाखिल हुआ तब भी यही दुआ मेरे लबों पर जारी थी, लेकिन शायद वो दिन मेरी दुआएं रद्द होने का दिन था। मैं जब खंडर में दाखिल हुआ तभी मुझे गीली लकड़ियों के जलने से पैदा होने वाले धुएं ने किसी ज़ीरूह की मौजूदगी का पता दे दिया था। कुछ लकड़ियां सुलग कर आग पकड़ चुकी थीं, लेकिन गीली और नम होने की वजह से बेहद धुआं फेंक रही थीं। इस धुएं के नीले मरगुले के झुंड में उस शख्स ने सर उठाया। मेरे कदम वहीं जमे के जमे रह गए। आसमान पर बिजली जोर से कड़की और मुझे यूं लगा कि ये बिजली कुदरत ने राह रास्त मुझ पर ही गिराई है। मेरे सामने सुल्तान बाबा बैठे हुए थे। उनको वहां बैठे देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। वो मुझे अपने सामने देखकर खुशी से निहाल हो गए। वल्ला साहिर मियां, ये तुम ही हो ना?
मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही तुम्हारा पैगाम मिला मैं चल पड़ा था, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई। मैंने सोचा कि रात भर से पहले तो अब ये बस ठीक नहीं होगी, तो क्यों ना पैदल ही चला जाए। लेकिन भला कुदरत अपना जोर दिखाने से कब चूकती है। सो देखो, रास्ते में इस बुछाड़ ने आ गिरा और यहाँ इस खंडर में पनाह लेनी पड़ी। फिर जैसे में कुछ याद आया, लेकिन तुम यहाँ कैसे साहिर मियां? भाई मान गए तुम्हारे इल्हाम को। सुल्तान बाबा मुस्कुराए। मुझे पल भर के लिए यूं लगा जैसे सुल्तान बाबा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं कि कुदरत मेरे साथ कैसा खेल खेल रही थी। असगर साहब को इस खंडर में किसी एक शख्स का कत्ल करना था, और सितम जरीफी देखिए कि इस मुमकिना मकतूल को अपना पैगाम भेजकर इस खंडर तक बुलवाने वाला कोई और नहीं था, मैं खुद था। और मैंने बुलाया भी किसको था? अपने मोहसिन, अपने रहबर, अपने पीरे कामिल को। ये मुकद्दर का मेरे साथ एक भयानक मजाक नहीं था तो और क्या था? मुझे समझ नहीं आया कि मैं सुल्तान बाबा से क्या कहूं। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, आप यहां से चले जाएं, यहां आपकी जान को शदीद खतरा है, कोई शख्स आपकी जान के दर पे है। ये क्या कह रहे हो मियां? भला हम दरवेशों की जान लेकर किसी को क्या मिलेगा? मैं जिद सा हो गया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा पैगाम आप तक पहुंचा भी है कि नहीं। मैं तो यहाँ उस अजनबी शख्स को बचाने के लिए आया था जिसे यहाँ कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें अपने जब्बलपुर आने से लेकर आज तक की हर बात बता दी कि किस तरह छलावा असगर साहब की आजादी के बदले उनसे यहाँ किसी के कत्ल का वादा ले बैठा है, और असगर साहब अब यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। सुल्तान बाबा ने इत्मीनान से मेरी सारी बात सुनी और सुकून से बोले, ठीक है साहिर मियां, अगर मेरी आखिरी सांस यहीं लिखी है तो फिर इससे भागने का कोई फायदा नहीं। आने दो तुम अपने इस छलावे को, मैं भी तो देखूं। अभी सुल्तान बाबा की बात उनके मुंह में ही थी कि अचानक पीछे से कोई जोर से चिल्लाया, अब्दुल्ला। मैं घबरा कर पलटा तो डलती शाम के साये में मैंने असगर साहब को वहशत भरे अंदाज में हाथ में वही चाकू लिए खड़े देखा। ये असगर साहब उस दरगाह वाले नर्म को असगर साहब से कतई मुख्तलिफ थे, और उनकी आंखों में मैंने गुस्से की चिंगारियां निकलती हुई देखी। वो फिर से गरजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि ये जगह आज किसी का मक्तल बनने वाली है? फिर भी तुम यहाँ चले आए। बड़ी हमाकत की है तुमने। अब भी वक्त है, जाओ चले जाओ यहाँ से। मैं उनकी जानिब से पलटा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरे सुल्तान बाबा हैं, उन्हें मैंने ही दरगाह आने की दावत दी थी। ये वो नहीं जिसका आपको इंतजार है। असगर साहब को जवाब देने की मोहलत नहीं मिली। अंधेरे में बिजली जोर से चमकी और खंडर के मुंडेर पर मैंने मलगजे अंधेरे में वही दो आंखें चमकती हुई देखी। वही शख्स मुंडेर पर अकड़ों बैठा हुआ था जिसे मैंने पहले ट्रेन और फिर दरगाह के बाहर देखा था। जोर से चिल्लाया, नहीं, ये वही है जिसका आज खात्मा होना अटल है। देर मत करो असगर, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। इस लड़के की परवाह न करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे बढ़कर वार करो, तुम्हारी आजादी तुमसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। मैं जल्दी से आगे बढ़कर सुल्तान बाबा के सामने खड़ा हो गया। खबरदार, इनकी जानिब बढ़ती हर चीज को पहले मुझे पार करना होगा। वो जोर से चिल्लाया, देर मत करो असगर, इस लड़के को भी रास्ते से साफ कर दो। हस्कम जहां पाक। सुल्तान बाबा सुकून से अपनी जगह पर खड़े अपनी मखसूस तस्बीह घुमा रहे थे। मुझे हटाकर मेरे सामने आ गए और ठहरे हुए लहजे में बोले, जिसकी जान का सौदा तय किया जा रहा है, कोई उसे भी तो बताए कि मोल क्या लगा है। मुझे क्यों खत्म करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छलावा जो अब कूद कर दूसरे मुंडेर पर बैठा गुस्से से हमें घूर रहा था, चलाकर नफरत से बोला,
ज्यादा बोले ना बनो। तुम खूब जानते हो कि तुम्हारी और मेरी दुश्मनी तो अजल से है। सदियों से तुम मेरा रास्ता काटते आए हो, कभी मजहब की सूरत में, कभी नेकी की सूरत में, कभी अच्छाई की सूरत में। आगाज से ही तुमने मेरा नाता बंद करने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं तुम्हारी सांसें बंद करके ये सारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आज मेरी वो पहली जीत होगी जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। सुल्तान बाबा के लहजे में अब भी ठहराव था। तुम सदियों की बात कर रहे हो, जबकि मैं तो एक आम इंसान हूं जिसकी उम्र फक्त चंद साल है। फिर तुम किससे अब तक लड़ते आ रहे हो? जरूर तुम्हारा दुश्मन कोई और होगा। छलावा सेन में खड़े एक जले हुए दरख्त की शाख पर अटका हुआ था। उसने नफरत से होंठ सुकेड़े। नहीं, तुम वही हो, बस तुम्हारे जिस्म बदलते रहते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे इस मुसीदा जिस्म से क्या लेना देना। मैं तो तुम्हारी उस रूह को खत्म करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। असगर, तुम वहां खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? आगे बढ़ो, वरना हमेशा के लिए मेरे गुलाम होकर रह जाओगे। क्या तुम्हें आजादी नहीं चाहिए? जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और याद रखो, अगर आज तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो जुर्माने के तौर पर मैं सारी जिंदगी तुम पर मुसल्लत रहूंगा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी दुश्मनी कितनी बुरी चीज है। सारी जिंदगी तड़पते और सिसकते रहोगे। तुम मौत मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। असगर साहब शदीद कश्मकश में हाथ में चाकू लिए खड़े थे। वे हिचकिचाकर आगे बढ़ने लगे। मैं जोर से चिल्लाया, ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाएं। चलावे ने गुस्से और नफरत भरी निगाह मुझ पर डाली, और अगले ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे उन आंखों के सहर ने जकड़ लिया हो। मैंने असगर साहब के रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में ही जकड़े रह गए। सुल्तान बाबा वैसे ही इस्तकामत से अपनी जगह खड़े थे। इस बार वो असगर साहब से मुखातिब हुए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरा खात्मा करने के बाद ये अफरियत तुम्हारा पीछा छोड़ देगी? और फिर अगर ये इस कदर ताकतवर है कि सारी जिंदगी तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रख सके, तो फिर इससे कहो कि आगे बढ़कर मेरा खात्मा खुद कर दे। इस कत्ल के लिए इसे तुम्हारे कमजोर इंसानी बाजुओं की जरूरत क्यों पेश आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आखिरी गुनाह करवाने के बाद ये पूरी उम्र के लिए तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहता हो? दो बड़ी रुक कर जरा गौर तो करो, थोड़ा सोच लो। मुझे कत्ल करने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, यहीं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। असगर साहब ठिठक कर अपनी जगह खड़े हो गए। चलावा ने रुकते देखकर जोर से चीखा, पागल मत बनो असगर, इस शख्स की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। ये जादूगर है, तुम्हारी तबाही के दर पर है। तुम जानते हो इस पूरी दुनिया में मैं ही तुम्हारा वाहिद दोस्त हूं। मैंने आज तक तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, जबकि तुम्हारे सामने खड़ा ये शख्स जो तुम्हें नसीहतें करने की कोशिश कर रहा है, इससे मिले तुम्हें अभी पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ। इस पर एतबार करके अपने आप को हमेशा के लिए खाक में ना मिलाओ। जाओ उसके सीने में ये चाकू घोंप दो और हमेशा के लिए निजात पा लो, वरना तुम्हारे गले में पड़ा ये सुर्ख धागा हमेशा के लिए तुम्हारी गुलामी का तोक बन जाएगा। चलो शाबाश, अब देर ना करो। सुर्ख धागे का जिक्र आते ही असगर साहब का ध्यान अपने गले की जानिब चला गया, और उन्हें शायद अपने माजी के गुजरे अजियतनाक दिन याद करके एक झुरझुरी सी आ गई। मुझे लगा कि चलावे का ये वार काम कर गया है। असगर साहब ने कहते हुए सुल्तान बाबा की जानिब कदम बढ़ा दिए। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। इसी में मेरी निजात है। चलावे की आंखों में इत्मीनान की एक लहर सी उठी। असगर साहब सुल्तान बाबा के करीब पहुंच चुका था। मेरी आवाज तक सलब हो चुकी थी और मैं दम साधे ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। सुल्तान बाबा ने कलमा पढ़ लिया और आखिरी बार बोले, ठीक है, मेरे खात्मे से तुम निजात पा सकते हो तो ये निजात तुम्हें मुबारक हो, लेकिन इस आरजी दुनिया की निजात क्या मायने रखती है? क्या अगले जहां में तुम्हारा भी सफरियत के साथ उम्र बराग में चलने का इरादा है?
یہی تو اس کا وہ ارادہ ہے جسے تم جیسے معصوم انسانوں سے ایسی کبیرہ گناہ کروانے پر اکساتا ہے۔ اصغر صاحب معصوم کا لفظ سن کر تلخی سے ہنسے۔ معصوم اور میں، تم شاید میرے ماضی سے واقف نہیں، ورنہ اس لفظ کی حرمت خراب نہ کرتے۔ دنیا کا کون سا گناہ ہے جو آج تک مجھ سے سرزد نہیں ہوا؟ اگلے جہاں کا تو میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تمہاری جان لے کر شاید یہاں کی چند سالہ مزید زندگی ہی آرام سے کٹ جائے۔ سلطان بابا گرجے، کتنا جی لو گے مزید تم؟ اور کیا ضمانت ہے کہ وہ زندگی بھی سکون سے گزرے؟ ضرور تمہارا دشمن کوئی اور ہوگا۔ اور ہاں، ایک گناہ اب بھی ایسا ہے جو تم نے اب تک نہیں کیا، قتل۔ کیا کسی معصوم انسان کے قتل کا بوجھ اپنے سر پر لے کر تم واقعی سکون کی زندگی جی پاؤ گے؟ کیا ضروری ہے کہ تم یہ آخری گناہ بھی اپنے کھاتے میں لکھوا کر اوپر جاؤ؟ توبہ اور معافی کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ تمہارے گناہوں کا کوئی شمار، کوئی حد ہو سکتی ہے، لیکن اس کی رحمت بے شمار اور لامحدود ہے۔ اب بھی وقت ہے، تمہاری سانسیں بھی باقی ہیں، ان کے ختم ہونے سے پہلے اس کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگ لو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تمہارے پاس تو کفارہ ادا کرنے کا موقع بھی ہے۔ سچے دل سے توبہ کر کے اس بدی کے ہر کارے کی بات ماننے سے انکار کر دو۔ شاید تمہیں قدرت نے آج اس مقام پر اسی لیے پہنچا دیا ہے کہ تم اپنی گناہوں بھری زندگی کا خود خاتمہ کر لو۔ بارش کی بوچھاڑ تیز ہو چکی تھی اور بجلی اب یوں کڑک کڑک کر ارد گرد گر رہی تھی جیسے آج اسے بھی اپنے کسی شکار کی تلاش ہو۔ اصغر صاحب کا اٹھتا ہوا ہاتھ اٹھتے اٹھتے پھر درمیان میں رک گیا۔ چلا بازی چھو کر غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ سلطان بابا کی گفتگو کے دوران وہ درجنوں بار اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ بالکل ہی لبریز ہو گیا تھا۔ وہ چلا کر بولا، بس بہت ہو چکا یہ کھیل۔ اصغر، تم اس کا خاتمہ کرتے ہو یا میں اپنے اسی سرخ دھاگے کو تمہارے گلے کا پھندا بنا ڈالوں ہمیشہ کے لیے۔ میں پل پر بھی انتظار نہیں کروں گا واپس پلٹنے میں۔ مار ڈالو اسے، گھونٹ ڈالو اس کے سینے میں یہ چاقو۔ میں کہتا ہوں ابھی۔ اصغر صاحب جو شاید اس قتل کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے، ان کی آنکھوں میں تعصب تھا۔ انہوں نے چلاوے کی داڑھ سے ڈر کر چاقو والا ہاتھ یوں فضا میں بلند کیا جیسے وہ اس بحث کے دوران 1000 بار ٹوٹ کر بکھر چکے ہوں۔ سلطان بابا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اصغر صاحب کے ہاتھ میں پکڑے چاقو کا پھل دور کہیں گرتی بجلی کی روشنی سے پل بھر کے لیے جگمگایا۔ اور پھر فضا میں سلطان بابا کی آواز گونجی، لا الہ الا اللہ۔ اصغر صاحب کا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا، میرے منہ سے نہیں کی چیخ نکل گئی۔ اصغر صاحب کے تیزی سے نیچے آتے چاقو کے تیز پھل نے ان کی گردن میں پڑے دھاگے کو اس طرح کاٹا کہ خود ان کی گردن سے بھی خون کا ایک تیز فوارہ سا نکلا، جس نے سامنے کھڑے سلطان بابا کو بھی رنگ ڈالا۔ اصغر صاحب نے سلطان بابا کے سینے میں چاقو گھونپنے کے بجائے اپنے ہی گلے میں پڑے ہوئے سرخ دھاگے کو کاٹ ڈالا تھا۔ دفتن بجلی زور سے کڑکی اور پھر فضا میں گھپ اندھیرا چھا گیا، اور میں نے اس گھپ اندھیرے میں برستی بچھاڑ کے پس منظر میں ان دو سرخ جلتی آنکھوں کو رفتہ رفتہ معدوم ہوتے ہوئے دیکھا، ایسے جیسے کوئی دو جلتے ہوئے شدید تیز انگاروں پر پانی کی ہلکی ہلکی بوندیں گرا کر انہیں دھیرے دھیرے بجھا دے۔ میں ابھی تک انہی آنکھوں کے سحر میں تھا کہ سلطان بابا کی زوردار آواز نے جیسے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، ساحر میاں جلدی کرو، ابھی جان باقی ہے، اسے کسی ہسپتال تک پہنچانا ہوگا۔ میں ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ اصغر صاحب زمین پر اوندے پڑے ہوئے تھے اور ان کے گلے سے بل بل خون نکل کر پانی کے قطروں کے ساتھ مل کر نیچے کیچڑ میں مل رہا تھا۔ سلطان بابا نے جلدی سے اپنے کاندھے پر پڑی چادر کو پھاڑا اور ایک پٹی سی بنا کر اصغر صاحب کے زخم پر خوب کس کر مضبوطی سے باندھ دی۔ قریب ہی کیچڑ میں لت پت پڑے اس سرخ دھاگے کو انہوں نے اس بجھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جو انہوں نے میرے پہنچنے سے پہلے کھنڈر میں روشن کر رکھی تھی۔